His Excellency, the Governor of Assam, Raj Bhavan, Guwahati. In the matter of rise different terrorist group of saboteurs, fundamentalists and communal outfits jeopardizing the peace and tranquility of Assam by kidnapping and killing innocent people in general and Hindi-speaking people in particular. Prayer for immediate intervention and adequate steps. Sir, while welcoming Your Excellency as Governor of this state of Assam and reposing our deep confidence on your able administratorship, most respectfully we for and on behalf of all Assam Bhojpuri Parishad beg to lay before His Excellency this memorandum in the matter as enumerated below for favor of your immediate intervention and appropriate action at the earliest. Number 1. That sir, perhaps you are well aware of the fact that once a state of peace and tranquility where the people of different communities, caste, creed and religion live in peace and harmony. Assam has now become the hotbed of terrorism and fertile land of the disruptive activities of the fundamentalist forces where innocent people are being killed every day. Nowadays, terrorists of Assam cast eye on the Hindi-speaking people living in Assam. Every day, Hindi-speaking people become the victim in the hand of the terrorists of Assam. Number 2, that sir, in the last 1.5 years, nearly 203 numbers of Hindi-speaking people of Assam were killed by the terrorists. This systematic mass killing of the Hindi-speaking people of Assam are being executed by the terrorists with a view to annihilate the population of Hindi-speaking people in Assam and to make room for the Bangladeshi intruders in Assam in the vacant lands to be left by the Hindi-speaking people of Assam. Number 3, that sir, since time immemorial, Hindi-speaking people living in Assam are constantly being deprived of any kind of job in central and state government department. They have also been deprived of proper representation as per pattern of population in the autonomous body created both by the central and state government. As stated above, we fervently pray before His Excellency, the Governor of Assam, to look into the burning problem of Hindi-speaking people living in Assam and be kind enough to pass necessary order for A. Safeguarding the lives and properties of Hindi-speaking people living in Assam. B. Delivering patta land to Hindi-speaking people living in Goa Khas land for more than 10 years. C. Deporting the illegal immigrant from Assam and complete the border fencing of Assam immediately. D. Proper representation of Hindi-speaking people of Assam in central and state government, jobs and autonomous body of the government of Assam. E. Nomination of the member from Hindi-speaking people of Assam in BTAD and Karbi Angalam Council. Further, we beg to pray before His Excellency to initiate dialogue with ULFA for bringing peace in Assam. For this just action of His Excellency, these memorialists shall remain grateful and cherish their memories forever. With regards, yours faithfully, Parsuram Dubey, Somnath Yadav, Nandlal Koiri, Arjun Mahato, Babul Gaur, Vijay Chaudhary, राजेश चौबे, देवानंद सिंह, एस.बी. तिवारी, विजय पंडित, अजय मिश्रा, कुश चौहान, धर्मेंद्र चौहान। ये आपने इसमें लिखा है, ये आपको भगा करके और बंगाली असम को बांग्लादेश के लोगों जाना चाहते हैं। तो बांग्लादेश के लोगों से तो यहाँ के लोग भी परेशान हैं, फिर ये क्यों लड़ना चाहते हैं? सर एक्चुअली अभी असम के जो ओरिजिनल लोग हैं वो भी कोई बांग्लादेशियों को पसंद थोड़ी करते हैं, नहीं करते हैं सर। किंतु हमारा जो टेररिस्ट ग्रुप यहाँ है सर, ये जो फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ISI हुआ, ये जो जितने भी मौलवादी ऑर्गेनाइजेशन
बांग्लादेश की हैं, पाकिस्तान की हैं, ये हमारे आसाम में ये सारे आतंकी कार्यवाही को ये अंजाम देते हैं। ये हमारे यहाँ के लोकल लड़कों को लेते हैं, हमारे यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको लेते हैं, उनको रुपया पैसा मुहैया कराते हैं, उनको हथियार देते हैं। अब जैसे सर कि लास्ट जनवरी 5 से लेकर 12 जनवरी तक इतने दिनों में कम से कम 100 हिंदी स्पीकिंग लेबर को मारा गया, जो लोग ब्रिक्स फैक्ट्री में काम करते थे, ईट भट्टा में। किसी एरिया में ज्यादा कंसंट्रेशन कार्बी आंगलॉन्ग में सर जो हुआ था, ये सर हमारा ये तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, ये सर ये लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो लोअर असम में धीरे धीरे हमारा फेंसिंग नहीं होने के कारण ये लोग धीरे धीरे इधर आए, रोजगार किए, सारा काम किए, जमीन पट्टा बस गए। और ऐसा होता है कि ये यहाँ का जो पेचीदा जो आंदोलन होती है, हमारी जो यहाँ के सबसे बड़ी एसामिस ऑर्गेनाइजेशन है आंसू, ये भी काफ़ी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये काम करने में सरकार, भारत सरकार, असम सरकार, आंसू, चाहे हमारे लोग को कहीं ना कहीं ऐसा मतलब लगता है कि गलत नीति होने के कारण इतना दिन से हम आंदोलन कर रहे हैं, समस्या समाधान नहीं हो रहा है। ये लोग लोअर असम में जब इनकी संख्या ज़्यादा हो गई, तब ये अपर असम में क्या किए, जहाँ जहाँ देखे किसको हटाया जा सकता है, तो देखे जो हिंदी स्पीकिंग लेबर है, बिहारी कम्युनिटी में जो ईट भाटा में काम कर रहे हैं, इनको अगर मार दिया जाए, इनको यहाँ से कुछ लोगों को मारा जाए तो लोग छोड़ कर जाएंगे। और हुआ वैसा भी, इन्होंने मारा और लोग ट्रेन पकड़कर सब अपने गांव चले गए। रिजल्ट क्या हुआ, वहाँ जिस ईट भट्टा में हमारे लोग काम करते थे, वहाँ लोकल लोग को काम करना चाहिए, वहाँ के जो हलुआ जिनको हम लोकल बोलते हैं, किंतु वो नहीं करके ये बाहर से आते हैं, धुबड़ी से आते हैं, ग्वालपाड़ा से आते हैं, कोई बोलता है बरपेटा से आते हैं, ये सब लेबर लोग वहाँ पर जाकर बस गए हैं। ये बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी है सर। इसमें अभी सर वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं रहता है, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाते हैं। और थोड़ा हमारा पॉलिटिकल सर इधर में जो नेतृत्व को जिस तरह से डट कर मुकाबला करना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा है। ये किसी एक पार्टी का नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी का। आंसू के जरिए जन्म हुआ था एडीपी का, उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि हम बांग्लादेशी को यहाँ से भगाएंगे, विदेशी खदेड़ेंगे, वो भी नाकाम रहे। जब सरकार में रहे तो जिस हिसाब से काम करना चाहिए नहीं किए, तो ये एक बहुत बड़ा पेचीदा प्रॉब्लम है। अभी उल्फा के कितने लोग होंगे हिंदी स्पीकिंग नियर अबाउट सर जो हमारे मारवाड़ी और बिहारी समाज के होते हैं लोग, ये मिलकर नियर अबाउट 30 लाख है सर। और हम सब जगह ऑल ओवर आसाम में बराक वैली लेकर हमारा ब्रह्मपुत्र वैली मिलाकर हम लोग 30 लाख के यहाँ पर। ये आसाम में है, ये आपके बरपेटा वगैरह में जो है, इसमें ज़्यादा पॉपुलेशन है कहाँ है? नहीं, हमारा सर डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, बराक वैली में, सिलचर, करीमगंज उधर में है ज़्यादा। ये बरपेटा में भी हमारे लोग हैं, किंतु जितना संख्या मतलब वहाँ है उतना संख्या इधर नहीं है। कार्बी आंगलॉन्ग में हमारी जनसंख्या है, ज़्यादातर काम मजदूरी करती है, मजदूर है, व्यवसाय है, कोई गाय रखा है। और जैसे कार्बी आंगलॉन्ग में जो है वो लोग तो पूरा समझ लीजिए, जितने हमारे नॉर्थ ईस्ट में ये जो गन्ना का खेती होता है और जो मीठा बनता है, ये कार्बी आंगलॉन्ग का प्रोडक्ट है। कार्बी आंगलॉन्ग से ही आता है गुड़ सर बहुत मेहनत करके, जो पहाड़ी इलाका था, हिल्स एरिया, वहाँ से मजदूर आकर, बिहार यूपी से आकर वहाँ मेहनत किए, मेहनत करके उस बंजर जमीन को खुशहाल बनाए और वहाँ खेती किए। तो काफ़ी प्रोडक्ट होता है वहाँ पर, ये जो ईख हम बोलते हैं, और इससे गुड़ बनता है, एक अच्छा रॉयल्टी मिलता है। तो प्रॉब्लम हो गया है कि ये एक कंस्पिरेसी के तहत हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता है। तो जिसको गोली मारा जाता है पेपर में, मीडिया में आ जाता है सर, किंतु ऐसे कितने लोग हैं हमारे व्यापारी वर्ग हैं, और गुवाहाटी को ही ले लीजिए, डिब्रूगढ़ ले लीजिए, जहाँ बोल नहीं पाते हैं कि हमसे चंदा मांगा गया है, हमसे डिमांड किया है। अगर हम पुलिस को भी बताते हैं तो भी प्रॉब्लम है। आप कह रहे हैं कि खेती करते हैं कार्बी लोग में, दूसरी पॉपुलेशन कौन है? कार्बी लोग हैं, कार्बी लोग हैं। कार्बी लोग, कार्बी के बाद हमारी जनसंख्या है। असामीज कितने हैं वहाँ पर? असामीज बहुत कम है, हमें कम है।
बहुत कम है, काफी सबसे कम लास्ट। ज़्यादातर लोग यही बांग्लादेश तो से जो इन्फ्लक्स है वो तो आपकी ये लोअर असम, मेघालय साइड से होते हुए। और सर बराक वैली जो सिंकियर है, करीमगंज, हैलाकांडी, उधर के तो मणिपुर आ जाता है। हाँ उधर मणिपुर भी आ जाएगा। मणिपुर आ जाता है।